ঢুকছি ওয়েস্ট গেট দিয়ে। শুনেছি এখান থেকে ভিউটা সব থেকে ভালো। হ্যাঁ, ঠিকই বুঝেছেন, যাচ্ছি একটা বিশ্ববিখ্যাত জায়গাতে। সেটা হয়তো অনেকেই দেখেছে, আবার অনেকে দেখেনি, কিন্তু আমি যতবার দেখি ততবার মুগ্ধ হই। যাচ্ছি দেখতে তাজমহল, পৃথিবী বিখ্যাত তাজমহল, শাহজাহানের স্বপ্ন শতদল তাজমহল। এবং এই তাজমহল বিশ্বের বিস্ময়। হ্যালো এভরিওয়ান, welcome back to the channel and to a new vlog. Sarkars on Wheels presents Taj Mahal of Agra, one of the 7 wonders of the world. পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। আগ্রার উপর দিয়ে যমুনা নদী বয়ে গেছে। সেই যমুনা নদীর ডান দিকে এই তাজমহল অবস্থিত। 1632 সালে এর কনস্ট্রাকশন শুরু হয়েছিল, আর আর্কিটেক্ট ছিলেন উস্তাদ আহমেদ লাহোরি। আর এখানে সম্রাট শাহজাহান আর মুমতাজ মহলের কবর রাখা আছে। এটা একটা আইভরি হোয়াইট মার্বেলের তৈরি মনুমেন্ট। এখানে মমতাজ বেগম এবং শাহজাহানের কবর আছে। মুঘল স্থাপত্যশৈলীর অন্যতম প্রধান নিদর্শন তাজমহল 73 মিটার উঁচু। সেই যে বলা হয়েছে না, অন্তরে তার মমতাজ নারী, বাহিরেতে শাহজাহান, এটা তাই। বিশ্ববিখ্যাত আগ্রার তাজমহল। তাজমহল যতবার দেখো ততবার মন ভরে না, এতই সুন্দর এটা। অসাধারণ। কে জানে কত পুরনো এই বট গাছটা, কত কিছুর সাক্ষী। এটা সাউথ গেট। The Taj Mahal, a marvel of marble, was built by the Mughal Emperor Shah Jahan. তাজমহলের দেয়ালের অপূর্ব সুন্দর নকশা। এগুলো সব নহবত খানা। আমরা ইস্ট গেট দিয়ে ঢুকবো, एंट्री আমাদের इस गेट दिए। क्योंकि ये वाला जो डोम है उनकी पहली वाइफ की मेमोरी में बनाया है। कौन सा वाला डोम? इस साइड पे एक डोम है ऊपर से। अच्छा, वहाँ से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये जो पिनिकल देखे थोड़ा जरा ये देखें। अच्छा, ये चलिए उधर से देखेंगे। ये जो शाहजहां की सेकंड वाइफ थी, उनका नाम था फतेहपुरी बेगम। उनकी जो कब्र है सामने वाले गेट के लेफ्ट हैंड पर, इस पे एक और ऐसा वाइट डोम है, उसके नीचे सेकंड वाइफ है। फतेहपुरी बेगम एंट्रेंस, सेकंड वाइफ का। इस साइड में जो गेट है साउथ गेट, इसको कहते हैं लेबर कॉलोनी गेट। जब ताजमहल को बनाया गया था उस समय ताजमहल में 20,000 मजदूर, वो 20,000 लोग इस गेट के बैक साइड में रहते थे। आने जाने के लिए साउथ गेट का यूज करते थे, इसलिए साउथ गेट को लेबर कॉलोनी गेट के नाम से भी जाना जाता है। इस गेट का हाइट, टोटल हाइट है 35 मीटर, अप्रोक्स 105 फीट करीबन। तो आप देखेंगे गेट के मिडिल में टॉप में है 11 + 11 22। पूरे ताजमहल सूरे वल फज्र, ये एक तरीके की मॉर्निंग प्रेयर है। इसके जो राइटर थे उनका नाम था अमानत खान शिराजी। उस समय ईरान सिराज से इंडिया आए थे। उनका जो कैलीग्राफी करने का तरीका है वो थोड़ा स्पेशल है। जैसे आप यहाँ वो नीचे से लेके ऊपर तक सारे लेटर आपको एक ही साइज के नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जो नीचे वाला लेटर है उसका साइज सबसे छोटा है, जैसे ही लेटर साइज बड़े होते जाते हैं।
लेकिन यहाँ से देखने पे आपको एक समान लगते हैं। सो कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। उसके जस्ट नीचे कुछ फूल और पत्तियाँ बने हुए हैं, देखने पे ऐसा लगता है कि दीवार के ऊपर फूल पत्तियों। ভারতের গর্ব এই তাজমহল ইউনেস্কো দ্বারা ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টার। শাহজাহানের প্রিয়তমা মুমতাজ মহল 1631 সালে 14তম সন্তান মানে 14th সন্তান গওহর আরা বেগমের জন্ম দিতে গিয়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মারা যান। এই মৃত্যু ঘটে বুরহানপুর, যেটা বর্তমানে মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত, এবং মৃত্যুর পর তাকে সেখানে কবর দেওয়া হয়। অর্থাৎ বুরহানপুরে মমতাজকে প্রথমবার দফন করা হয়, মানে কবর দেওয়া হয়। শাহজাহান তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। শাহজাহান খবর পাওয়ার পর সেই কবর স্থানান্তরিত করে আগ্রাতে আনেন এবং তাজমহলের মানে মুখ্য যে মিউজিয়াম তার সামনে তাকে দফন করা হয়, মানে কবর দেওয়া হয়। তাজমহল বানানো সমাপ্ত হলে শাহজাহানের নির্দেশে সেখানে পুনরায় মানে তৃতীয়বার মমতাজের দেহ তুলে নিয়ে গিয়ে সেখানে কবর দেওয়া হয়। শাহজাহানের মৃত্যুর পর তাকেও মমতাজ মহলের সমাধির পাশেই কবর দেওয়া হয়। তাজমহল তৈরি করা হয়েছিল রাজস্থানের মকরানা থেকে আনা শ্বেত পাথর দিয়ে। এই শ্বেত পাথরগুলোকে আইভরি হোয়াইট মার্বেল বলা হয় এবং এই তাজমহলের ওপর যে সমস্ত মণিমাণিক্য খচিত আছে সেগুলো সারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আনা হয়েছিল। के छोटे बेटे औरंगजेब को पसंद नहीं आई। औरंगजेब चाहते थे हमारे फादर रिटायर हो जाएं, चेयर वो हमको दे दें, राजा हमको डिक्लेयर कर दे। चूंकि शाहजहां ने पब्लिक के सामने कमिट कर दिया था कि मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा बैठेगा, इसलिए उनका छोटा बेटा औरंगजेब कहते हैं कि एनी हाउ चेयर मुझको चाहिए, इसके लिए कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। औरंगजेब ने एक प्लान बनाया कि जहाँ जहाँ उसके बड़े भाई अपने फादर की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, औरंगजेब वहाँ जा करके अपने ही तीनों बड़े भाइयों का कत्ल, उनका मर्डर कर देता है। वापस आगरा आता है जहाँ शाहजहाँ ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन बना रहे होते हैं, यहाँ आकर के अपने फादर को अरेस्ट कर लेते हैं, काम को रुकवा देता है। अरेस्ट करने के बाद अपने ही घर आगरा के लाल किले में उनको रखता है, ये आचरण देता है। उस टाइम के इतिहास सर कहते हैं जब औरंगजेब ने अपने फादर को बंदी बना के रखा तो उनको लिमिटेड पानी, लिमिटेड खाना मुहैया कराया। उस वक्त उनकी बड़ी बेटी जहानारा एरिया 42 एकड़ 3000 स्क्वायर मीटर। ताजमहल की जो टोटल हाइट है तो 73 मीटर है। ताजमहल के चारों कॉर्नर पे एक एक टावर को बनाया गया है, हर टावर की हाइट 42 मीटर है। यदि ताजमहल को आप सेंटर पॉइंट में से खड़े होकर देखते हैं तो चारों मीनार आपको सीधी दिखती है, लेकिन हकीकत में बाहर की तरफ टिल्टेड है। 0.5 डिग्री आउटसाइड टिल्टेड है हर मीनार। उनको टिल्टेड ही बनाया गया है। टिल्टेड बनाने का रीज़न था कि फ्यूचर में कभी जब यहाँ पे अर्थक्वेक जैसा डिजास्टर आएगा तो जो टावर जिस डायरेक्शन में टिल्ट है उसी डायरेक्शन में गिर जाए। ऐसा ना हो कि अंदर गिरे, अगर अंदर गिरता है तो मेन स्ट्रक्चर को ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। शाही मेहमान खाना डिक्टो पार्क, इसके अपोजिट साइड में शाही मस्जिद, ये शाही दरवाज़ा बिफोर एंट्रेंस एरिया। शाही दरवाज़ा और ताजमहल के बीचों बीच में है पानी का टैंक, लेफ्ट राइट का वॉल, ये प्लेटफॉर्म और ये गार्डन्स। इनको बनने में मुमताज को बेहद प्यार करते थे। उनकी जो पहली 2 वाइफ थी उनको उनसे कोई भी चाइल्ड नहीं था। तीसरी वाइफ मुमताज से 39 की एज में 14 चाइल्ड हुए, 14 में से 8 बच्चे सरवाइव नहीं कर पाए। 6 बच्चे यंग एज तक बेटे और 2 बेटियां थी। सबसे बड़े बेटे का नाम दारा शिको, दूसरा बेटा शाह शुजा, तीसरा मुराद और चौथा औरंगजेब। 2 बेटियां जहानारा और रोशनारा। जब मुमताज का 14वां मध्य प्रदेश, जहाँ पर एक फेमस सिटी है बुरहानपुर, मुमताज ने 14वें बच्चे की डिलीवरी बुरहानपुर सिटी में करी। डिलीवरी के टाइम शाहजहां उनके पास नहीं थे, वो किसी ऑफिशियल काम से बाहर गए हुए थे। वापस वहाँ आते हैं तो उनके जो सर्वेंट होते हैं, सेवागार, वो उनको बताते हैं कि जहाँ आलमपना हमारे बीच में बेगम साहिबा नहीं रही। लेबर जब 3-4 घंटे बाद शाहजहां नॉर्मल होते हैं
तो वापस अपने सेवागारों से पूछते हैं कि मरता ही मेहमान खाना। डिक्टो पार्क इसके अपोजिट साइड में शाही मस्जिद, ये शाही दरवाज़ा बिफोर एंट्रेंस एरिया। शाही दरवाज़ा और ताजमहल के बीचों बीच में है पानी का टैंक, लेफ्ट राइट का वॉल, ये प्लेटफॉर्म और ये गार्डन्स। इनको बनने में 17 + 5 22। जब ताजमहल बन के कम्प्लीट हो गया तो शाहजहां ने अनाउंस किया कि इस वाले ताजमहल में हम अपनी थर्ड वाइफ मुमताज का टूम बनाएंगे और मैं अपना टूम बनाऊंगा जो इस ताजमहल के पीछे होगा। दूसरा ताजमहल मैं ब्लैक ऑनिक्स काले स्टोन का बनाऊंगा। तो शाहजहां ने कहा कि इसको बनने में 22 साल का समय लगा है, अगर मैं एक और बनाता हूं तो मुझे एक और 22 साल का समय चाहिए। ताजमहल बन के कम्प्लीट हो जाता है इंडिया का लाइफ, तो मैं भी रिटायरमेंट की एज पर आ जाऊंगा। तो मेरे रिटायर होने के बाद जो मेरा बड़ा सन है दारा शिकोह, ये मेरी चेयर पे बैठे हुए जो आगे हिंदुस्तान जो उसके मेन इंजीनियर थे उनका नाम था अली मर्दान। ताजमहल के लेफ्ट साइड पे आर्ट गार्डन है, आर्ट गार्डन इसके राइट साइड में। बीच में जो फाउंटेन्स हैं उनकी संख्या है 53 फाउंटेन और 16 गार्डन बनाने का रीजन था कि जो ताजमहल की कंप्लीट होने वाली ईयर है उस ताजमहल के आगे फिर से रिप्रेजेंट करना है। जैसे ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ 1631 में और ये बन करके कंप्लीट हो गया 1653 में। तो यहाँ पे 16 गार्डन एंड 53 फाउंटेन्स को बनाया। ओके, आगरा में सिलेक्ट करी तो 6 महीने बाद उसके कॉफिन को फिर से निकाला गया और सेकेंड टाइम इस वाले प्लेटफॉर्म में दफनाया गया। फिर यहाँ से भी जब ताजमहल का बेस वर्क पूरा कंप्लीट हो गया फिर यहाँ से भी निकाल के उनको वहाँ दफनाया गया। तो पूरे मुगल एरा में मुमताज एक ऐसी लेडी हैं जिनको 3 बार दफनाया गया, 2 बार धरती से भी निकाला गया। इधर से आएंगे प्लीज। মসজিদ এখানে ওরা প্রেয়ার করে, এখানে প্রেয়ার করে তারপরে তাজমহলে এন্টার করতো। এটা মুসলিমটা আর ওইদিকে মেহমানখানা একদম সেম দেখতে, সেম টু সেম, দুটো দুদিকে অবস্থিত। এটা শাহী মস্ক মেহনত मेहमान खाना ठीक अपोजिट है, एक ही रकम देखते हैं। मॉस्क डिजाइन हर जगह में है। नहीं एक ही डिजाइन नहीं, ये अलग है, ये अलग है, नीचे अलग है, ऊपर अलग है, सब अलग अलग है। अच्छा अच्छा, अलग अलग है। ये तो क्या तो नॉर्मल भी है ना, ऊपर फूल यहाँ पे अलग बनाया है। सब जगह का डिजाइन आलादा आलादा। আর্থিং এর জন্য এটা লাইটনিং হলে আর্থিং হয়ে যাবে, সেই জন্য এটা বানানো আছে তখনকার সময়কার বানানো। बना हुआ है, आप इसको टच करके महसूस करो कितना स्मूथ है ये काम। यू कैन फील इट, टच इट एंड फील इट। क्या बोल रहे थे आप? इनले और मीनाकारी और कच्चेकारी। अच्छा, ये है कार्विंग, ये 1 सिंगल पीस मार्बल है यहाँ से लेकर के वहाँ तक का। आप इसको टच करके महसूस करो कितना स्मूथ काम है ये 400 साल पहले किया है। इसको फील करो आप तो कितना कैसे बनाया होगा। आज भी उनकी 17 जनरेशन इस काम को करती है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आके। तो कुछ एक पार्ट उन्होंने रिपेयर किया है। जैसे यहाँ ये पार्ट खराब हो रहा है मार्बल का, तो उतना ही पर्टिकुलर पार्ट काट करके रिपेयर किया है। जैसे ये पार्ट है ना पूरा न्यू पीस है, ये किया हुआ है, ये नया पत्थर है, ये पुराना पत्थर है ना। इधर आएंगे कैमरे पर एक सा बनाया। हाँ बिल्कुल एक जैसा बनाया। तो आज भी उनकी 17 जनरेशन यहाँ काम करती है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में। तो बनाने के टाइम ये पत्थर एक जैसा क्यों नहीं बनाया? ये तो पत्थर ही 400 साल पुराना है, ये नया पत्थर है। वो धीरे धीरे जाके ऐसे ही हो जाएगा एडजस्ट, है ना। आएंगे अभी हम अंदर देखेंगे। चार पत्ते कितना एक सा बनाया, पर फर्क है, इसमें फर्क है, बिल्कुल कारीगरी में फर्क है। यस, कारीगरी बहुत बरू। তাজমহলের ইস্ট দিক মানে ডান দিকে প্রায় 70 ফুট উঁচু দেওয়াল বিশিষ্ট অতি সুন্দর মেহমানখানা অবস্থিত। এই মেহমানখানা তাজমহলের গেস্ট হাউস এন্ড পার্টি স্পেস। আর এটা তাজমহলের ডান দিকে অবস্থিত মসজিদ নাক্কারখানার মতনই একদম আইডেন্টিক্যাল একটা বিল্ডিং।
We are waiting for sunset. Taj Mahal looks reddish during sunset. During sunset, Taj Mahal looks reddish. এটা যমুনা শুকিয়ে গেছে, চর পড়ে গেছে, ওখানে অল্প অল্প জল, এক একটা নৌকো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এক একটা নৌকো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু বেসিক্যালি তাজমহলের পেছনে যমুনা একদম শুকিয়ে গেছে, কিন্তু তাজমহলের ভিউটা অসাধারণ লাগছে এখান থেকে। আশা করি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করে আমাকে জানান, আর আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।